Good morning, all the students of class 10th CBSE. Yes, this is Dinesh Chadaudia, and again I welcome to all in my YouTube channel, The Exam Toppers. Yes, my dear students, हम जो क्लास में कर रहे थे वो लिटरेचर स्टार्ट है हमारा और फर्स्ट चैप्टर वी हैड कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द writer, and writer is very famous and you know very well the name of the writer, Nelson Mandela. And Nelson Mandela, African nationalist leader, and Mandela was born at Umtata, South Africa, and Umtata is the place name of the place which is situated in South Africa, and Mandela was born in 1918. He was a lawyer by profession. As a profession he was a lawyer, yes, but renounced his profession career and joined the African National Congress in 1944. He was greatly influenced by Mahatma Gandhi. Yes, he is very greatly influenced by Mahatma Gandhi. He started the non-violence movement against the racial discrimination in South Africa. But afterwards he returned to a militant fighter. He was arrested many times and imprisoned by the apartheid prologued and by the government of the South Africa from 1962. For his prolonged imprisonment there were agitations at home and abroad. At last the government had to give in to the popular demands and international give in to the popular demands. Yes, we know, already discussed. But Mandela was released. Mandela was warmly received by many countries. After his release, he is a symbol of the struggle of South African black and oppressed. Yes, my dear student, this is only about the writer. And now we will discuss a very short summary of the chapter, and then we will start the whole chapter step by step. Along to Freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa. Yes, on 10th of May 1994, Nelson Mandela has taken the vote as the first black president of South Africa. Yes, you can understand in very short again that he became the first black president of South Africa. When? 10th of May 1994. Yes, and black president of South Africa, and therefore it was becoming a newborn democratic country. Nelson Mandela took the oath as the first black president. Yes, we discussed already, you know very well about it. But that time many dignitaries from different countries had come to part of the most significant day, and day was when he became the president of South Africa. Yes, in his speech, which speech? Mandela's speech, in which speech took Mandela thanked all those dignitaries. Mandela assured his countrymen that his country would never experience the same suppression of one by another. Democracy had been established in South Africa, and as a result, government of no discrimination government of the discrimination was established there. And who declared it? Nelson Mandela. But the people of South Africa sang two national anthems as a symbol of day. Mandela recalled that the reason for this moment was that black skinned people
were exploited by the white people. Yes, he said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars. People must learn to hide first, because if they hide, then they can be taught to love as they come from the opposite circumstances. He also says that a brave man is not that who doesn't feel afraid, but who conquers it. In life, a man has two major obligations. Yes, every man has obligations, but Mandela's life also two major obligations. And which one is? First, towards his family, to his parents, to his wife, to his children, and second, on the other hand, obligation towards his his country people. Yes, second obligation is his country people and the community. Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest, but it was very tough to fulfill in a country like South Africa. Yes, my dear students, and when Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. In fact, he was slave of exploitation. He also understood that not only he was a slave, but his other family members were also. According to him, freedom is also mandatory for them who were suppressing others in the past. They also have the right to have it, because snatcher of others' freedom is prisoner of the same. Thus the oppressor is as much a prisoner as the oppressed. The oppressor too is not free. Yes, this is the short summary of the chapter, but we must understand the whole chapter in detail. And the name of the chapter is Nelson Mandela. But the chapter is about the Nelson Mandela, and it is an extract from the Long Walk to Freedom. Yes, my dear students, this is the book of Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. It's written by Nelson Mandela, and this chapter has been taken from that book. So let's start. First, before you read, apartheid is a very important meaning here. Just a minute. Yes, and the meaning of is a political system that separated people according to their races. यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इसका मीनिंग आ रहा है बहुत डिफरेंट है. डिफरेंट मीन्स यहाँ पर दो कैटेगरी के अलग अलग लोग हैं जिसको क्या कर दिया है, डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, मतलब कि उन दोनों के बीच में भेदभाव किया जाता है. Can you see which of the three countries named below had such a political system until very recently? Yes, there are three names of the countries, and in these countries this apartheid would be applied or not? Yes, first one is North America, second one is South Africa, and third Australia. Okay, next paragraph. Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Yes, in the short summary we discussed, my dear students, that Mandela पूरी लाइफ अपने अधिकारों के लिए क्या करा, उन्होंने फाइट की है. किसके? अपार्थीटी के अगेंस्ट में. किसने फाइट की है? नेल्सन मंडेला ने. और उन्होंने क्या की थी? नेशनल कांग्रेस में पूरी की पूरी अपनी लाइफ स्पेंड की है. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. Finally, democratic election were held in South Africa in 1994. Yes. क्या होता है
कि यहाँ पर 30 ईयर्स उन्होंने कहाँ पर निकाले थे, प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर। और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन अपने देश में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं, क्योंकि हमारे देश भी कैसा है, एक डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर भी है। डेमोक्रेटिक समझते हैं हम, बहुत अच्छे से जानते हो सभी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक पीपल। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जो हर जगह है। हर जब भी कुछ अच्छा काम या बुरा काम होता है, लोग क्या करते हैं, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का बहाना कर लेते हैं नेता और आगे बढ़ जाते हैं। पर हमें उस चीज़ पे अभी ध्यान नहीं देना, हमको चैप्टर पे ध्यान देना। यस, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। यस, आफ्टर कंप्लीटिंग 30 years in the prison, he selected as the first black president of new nation. In this extract from his autobiography, yes, we discussed in the summary that this chapter has been taken from his autobiography. And which autobiography? Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom. Yes, it's very important. You must understand here. I underlined it for you. Yes. Long Walk to Freedom. ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, नेल्सन मंडेला की। मंडेला स्पीक्स अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन, कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी, चेक योर गेस विद दिस न्यू आइटम्स फ्रॉम द BBC ऑफ 10th of May 1994। इसको हम इस आर्टिकल में भी देख सकते हैं, पर अभी हमको देखने की ज़रूरत नहीं, हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, you know very well about it, but in bracket whatever have you given for it you, it's very important, so first we will discuss it, then continue आगे। और क्या, yes, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Yes my students, साउथ अफ्रीका में मोर देन 3 centuries, मतलब आप समझ सकते हो सेंचुरीज जो काउंट होता है किसको बोलते हैं अपन, डिकेड होता है, सेंचुरीज होता है, डिकेड 10 साल का पीरियड होता है, और सेंचुरीज में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स। तो 300 साल अपन ये समझ सकते हैं यहाँ पर, वी कैन अंडरस्टैंड हियर, 300 सालों से किसका रूल था वहाँ पर, वाइट रूल था। बट उसके बाद में ब्लैक, नेल्सन मंडेला क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, नॉन वाइट पर्सन होते हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स। जैसे कि अपने यहाँ पे भी अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग सीट्स होती है, लोकसभा की सीट अलग होती है, राज्यसभा की सीट अलग होती है, सभी के अलग अलग इलेक्शन होते हैं, विधानसभा की सीट राज्य के अनुसार होती है। तो ऐसे ही अफ्रीका में जब चुनाव हुआ था, इलेक्शन हुआ था, तो 400 सीट्स में से 252 मतलब 400 में से 252 किसको मिली थी, नेल्सन मंडेला को। इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, और साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में उस टाइम का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यस, The inauguration ceremony took place in Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. Yes, वहाँ पर एक फंक्शन होता है, फिर एक सेरेमनी होती है, एम्पी थिएटर, दिस इज़ द नेम ऑफ प्लेस जहाँ पर ये पूरी सभा हुई थी, सेरेमनी हुई थी। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। यस, पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से, मतलब कि 140 कंट्री के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। पॉलिटिशियंस मेन जैसे कुछ होते हैं अपने यहाँ पर, जैसे अपन बोलते हैं कि मोदी जी हर बार चले जाते हैं कहाँ पर, विदेश यात्रा पे, तो वो ऐसे ही नहीं जाते, इस तरह की जो सेरेमनी होती है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे उठ के चले जाते हैं। यस, तो फिर क्या होता है आगे, नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. And what is the meaning of address here? Address मतलब ये नहीं कि C सेक्टर 13/30 महानंदा नगर, ये एड्रेस की बात नहीं कर रहे हम। एड्रेस मतलब यहाँ पर मंडेला क्या कर रहे हैं, अपना संबोधन कर रहे हैं, अपने स्पीच में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं हम देखते हैं आगे। और jubilant since the streets of Pretoria followed the ceremonies with blacks
whites and colored celebrating together. yes, colored to celebrating क्यों यूज़ किया यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ब्लैक पीपल भी हैं, वाइट पीपल भी हैं, और इसके अलावा जो मीडियम वाले भी होंगे, इससे कहीं से आए होंगे तो यस. More than 1 lakh South African men, women and children of all races. Races is used for here religion, community. Sang and danced with joy. सब के सब लोग वहाँ पे खुश हैं, डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और सब इंजॉय कर रहे हैं. Yes, now we will start our chapter. एक्टिविटी हम बाद में कर लेंगे, आप सेल्फ कर सकते हो, और नहीं करो तो फिर मुझे बताना, कमेंट कर देना. लाइक तो कर ही देते होंगे आप लोग, सब्सक्राइब कर लेना एक बार, है ना, ध्यान रखना है. उससे क्या होगा कि जब दूसरा चैप्टर आएगा या दूसरा कुछ भी डलेगा इधर से, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. और वैसे भी अपना उसमें कुछ बिगड़ता था ही नहीं, फ्री में होता है. बस आपको 1 सेकंड लगता है, बस क्या करो, ऐसे उंगली ले जाओ, दबा दो. ओके, स्टार्ट करते हैं, वो अपनी बात है. 10th मई, dawn bright and clear. यहाँ पर अपने पास एक वर्ड आया है डॉन. डॉन का मतलब होता है कोई नई शुरुआत होती है, जैसे कि सुबह की अर्ली मॉर्निंग की जो नई सूरज की नई किरणें होती है, उसके साथ कोई काम स्टार्ट होता है. तो यहाँ भी क्या है कि जो 10th ऑफ मई है, 10 मई का दिन है. ईयर कौन सा है, पहले डिस्कस कर लिया हमने, 1994. कैसा है, बिल्कुल क्लियर. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली, थोड़ा ऊपर, pleasantly visited by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inaugurations. yes, अब वहाँ पर क्या हुआ है, 10th ऑफ मई के जब सुबह क्या होता है कि सभी देश, सभी डिग्निटरीज, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग क्या होते हैं वहाँ पर कलेक्ट होते हैं. डिग्निटरीज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, हाई रैंक पीपल, जो रैंक वाले होते हैं या अच्छे बड़े लोग होते हैं, नेता, बड़े नेता होते हैं. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. Yes, उस soil का मतलब यहाँ पर वैसे तो जो soil होती है, मिट्टी होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है. बट यहाँ पर हमने यूज़ किया उसका कि उस जगह से, साउथ अफ्रीकन की जगह से क्या होता है, एक लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, और वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, और इंटरनेशनल दूसरे देशों के सभी लीडर्स वहाँ पर आते हैं. यस, फर्स्ट पैराग्राफ इज ओवर. एंड कुछ मीनिंग है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक मीनिंग दिया है बिजाइंड. इसका मीनिंग होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, मतलब कि बिल्कुल भीड़ हो जाना. जैसे कि अपने यहाँ कोई नेता आता है तो क्या होता है, उसके आसपास बहुत भीड़ हो जाती है. कोई एक्ट्रेस आती है तो बहुत भीड़ इकट्ठी कर देते हैं लोग उसके आसपास. कोई एक्टर आता है तो बहुत कर देती है, और अपन जाते तो कोई नहीं आता, है ना. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर. यस, एम्पी थिएटर वो जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है, वो सेरेमनी की जा रही है. फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. प्रिटोरिया दिस इज़ द नेम ऑफ प्लेस. जैसे कि जैसे अपना उज्जैन है, तो उज्जैन क्या हुआ, एक जगह हुई. अब इसके अंदर जैसे कि सर्किट हाउस है जहाँ पर हो रहा है, दशहरा मैदान, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, सारे नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है. तो ऐसे ही वहाँ पर प्रिटोरिया, ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में है. और प्रिटोरिया में कौन सी जगह है, एम्पी थिएटर है, जिसको किससे बना हुआ, सैंड स्टोन से बना हुआ, लवली सैंड स्टोन से, जैसे कि अपन संगमरमर से बना हुआ इस तरह से यूज़ करते हैं, वो वाली चीज़ें. तो वहाँ पर ये असेंबली हो रही है. Yes, for decades, this had been the seat of white supremacy. सालों से वहाँ पर किसके शासन था, किसका रूल था, वहाँ पर रूल था white supremacy का. And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government. Yes, और यहाँ पर देखो रेम्बो गैदरिंग यूज़ किया गया. अब रेम्बो गैदरिंग का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं इसको. रेम्बो गैदरिंग, रेम्बो एक्चुअल में क्या होता है, अलग अलग उसके अंदर कलर्ड होते हैं. कितने कलर होते हैं वो तो आप जानते हो, तो मैं नहीं बता रहा हूँ. रेम्बो देखा है आपने, बारिश होती है और बारिश के जस्ट अपोजिट बाद में क्या होता है, सूरज की किरणें आती है, तो बीच में की जो जगह होती है उसमें एक रेम्बो बन जाता है. तो वहाँ पर वो अलग अलग कलर में दिखाई देता है. तो यहाँ पर जो सेरेमनी हुई है, इसमें भी क्या हुआ है, जो लोग आए हैं उसके अंदर ब्लैक पर्सन भी है, वाइट भी है, थोड़े सांवले भी है हमारे जैसे.
तो उसमें क्या हुआ है, तो कलर देखा भाई, सिंबल लिया गया है कि रेनबो गैदरिंग, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऑफ पीपल वर गैदरिंग टुगेदर देयर, एंड आफ्टर मैनी डिकेड्स दिस इज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक ऑफ नॉन रेशियल गवर्नमेंट. यस, on that lovely autumn day I was accompanied by daughter Janani. Yes, we must understand this name, very important name here. accompanied, accompanied मतलब समझते हैं कंपनी देते हैं अपन, जैसे कहीं जाते हैं किसी को बोलते हैं ना कि यार तू चल मेरे साथ कंपनी दे देना. आजकल लोग दे देते हैं, कोई नहीं भी देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी डॉटर है, डॉटर का नाम क्या है, जेननी. वो क्या करती है, उनको कंपनी देती है. ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब जहाँ पर वो खड़े होकर बोलने जा रहे हैं, मिस्टर डे क्लर्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. वो कौन थे, सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. डेप्यूटी प्रेसिडेंट मतलब जैसे अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री है तो एक उप मुख्यमंत्री होता है, डेप्यूटी प्रेसिडेंट की यहाँ पर इस तरह से बात की जा रही है, समझ सकते हैं आप बहुत इजीली. देन नेक्स्ट पेज. यस, दिस इज द very important picture of whose, and very beautiful picture. Who is this? You know very well, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं. क्या नाम है इनका, समझ जाओ, बताने की जरूरत नहीं है. Thabo Mbeki was sworn in the first deputy president. When it was my turn, it means Mandela's turn, pleads to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of republic and its people. Yes, जब आई इज यूज्ड फॉर नेल्सन मंडेला, जब उनका टर्न आता है तो वो सबको रेस्पेक्ट शो करते हैं. एंड क्या बोलते हैं वो, अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं हम सभी, उसकी बता दें मतलब संविधान की बात करें. एंड डिवोट माई सेल्फ, वो अपने आप को डिवोट करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, किसके प्रति, संविधान के प्रति. टू द असेंबल्ड गेस्ट, एक लाइन छूट गई ना, वेल बीइंग द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड. और बोलते हैं कि पूरी दुनिया के लोग जो क्या कर रहे हैं, इस सेरेमनी को देख रहे हैं. आई सेड, कहते हैं वो, क्या कहा उन्होंने. अब उन्होंने जो कहा है वो हमें इन छोटे से छोटे वर्ड्स में मिलेगा, तो समझ लेते हैं हम. टुडे ऑल ऑफ अस डू, हम सब इकट्ठा हुए हैं, हम सब हैं यहाँ पर, इकट्ठा नहीं, वो सब हैं यहाँ पर टुडे. बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty. न्यूबॉर्न लिबर्टी क्यों यूज़ किया है हमारे, लिबर्टी हुए वो मतलब आज़ाद हुए, फ्रीडम हुए, किससे, गोरे लोगों से, है ना. तो क्या हुआ है, उसको उन्होंने नाम दिया है न्यूबॉर्न लिबर्टी. कॉन्फर एक वर्ड दिया है यहाँ पर जिसका मीनिंग इधर साइड में दिया हुआ है, सॉरी, अ फॉर्मल वर्ड हियर गिव, फॉर्मल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. Extraordinary, देखो समझो यहाँ पर, out of the experience, किसका अनुभव था इनको आज तक, of an extraordinary people human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. And in the next paragraph, who were outlaws. अब इसका पूरा का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, वी हु वर आउटलॉज का मतलब होता है बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थिटी. अपार्थिटी यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, एंड आई वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. अ फॉर्मल सोशल सिस्टम स्पेशली इन साउथ अफ्रीका. Many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. Yes. Have today been the rare privilege to be host to the nations of the world and our own soil. ये हमारी क्या है, ये नेशन हमारा है, ये सॉइल, ये मिट्टी, यहाँ की ज़मीन, ये धरती किसकी है, ये हमारी है. We thank all our distinguished international guests
for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice। और बता रहे हैं वहाँ पर ये विक्ट्री किसकी है, एक कॉमन विक्ट्री है। विक्ट्री मतलब जिस एक जीत हो जाना अपनी। फॉर पीस, किसके लिए विक्ट्री हुई है, पीस के लिए, शांति के लिए। शांति के लिए मतलब वो पीस वाले शांति, पड़ोस वाले शांति मत समझ लेना कोई, है ना। फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यस वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। यस, बता रहे हैं वो कि एंड लास्ट, आखिरी में हमने क्या कर लिया है, अपनी जो पॉलिटिकल या अपनी जो फ्रीडम थी उसको हमने अचीव कर लिया। अचीव्ड इट मीन्स गेन, टू गेन। ये एमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, बहुत रेस्ट्रिक्शन थी उनको, लेकिन उससे वो क्या हुए, आज़ाद हुए हैं आज। टू आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, हमारे लोग कैसे थे सदियों से वहाँ पर पॉवर्टी में थे, गरीबी में थे, डिप्रीवेशन में थे, सफरिंग थे, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिस्क्रिमिनेशन यू नो जिससे हम भेदभाव करते हैं एक दूसरे से, है ना। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू पॉवर्टी, रिलेटेड टू डिप्रीवेशन, रिलेटेड टू सफरिंग, रिलेटेड टू जेंडर, दिस टाइप्स ऑफ मैनी डिस्क्रिप्शन वर गोइंग ऑन इन द साउथ अफ्रीका बिफोर नेल्सन मंडेला इलेक्टेड and became the first president of South Africa. Yes. The sun shall never set on the glories a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. Reign. और किसको गॉड ब्लेस बोला उन्होंने? अफ्रीका को। ये वो है जो उन्होंने पोडियम के सामने खड़े होके अपनी स्पीच दी थी। ये इसका एक फर्स्ट पार्ट है एंड नाउ ओरल कॉम्प्रिहेंशन, बट वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर इन द अदर वीडियोज and first part is completed. So enough for today my dear students in this video, and second part second वीडियो में आएगा, जिसके लिए आप क्या कर लेना, इसको सब्सक्राइब कर देना, तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे सेकंड पार्ट आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।